تلنگانہ حکومت کی کابینہ نے سرکاری ملازمین کے لیے 2 گرانی الاؤنس منظور کرنے، خواتین کے سیلف ہیلپ گروپس کے لیے حادثاتی بیمہ اسکیم شروع کرنے، آنگن واڑی اساتذہ کو سبکدوشی کے وقت فی کس 2 لاکھ روپے دینے سمیت کئی اہم فیصلے لیے۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا کی صدارت میں کابینہ کا اجلاس رات دیر گئے جاری رہا اور تلنگانہ حکومت کی کابینہ نے کئی اہم فیصلے لیے ہیں، جس کے بعد سے ریاست کے سرکاری ملازمین، خواتین گروپس، آنگن واڑی ورکرز اور دیہی عوام میں مسرت کی لہر دوڑ گئی ہے۔ کابینی اجلاس کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ کابینہ نے سرکاری ملازمین کے لیے 2 گرانی الاؤنس یعنی ڈی اے کی منظوری دی ہے۔ ایک ڈی اے فوری طور پر ادا کر دیا جائے گا جبکہ دوسرا 6 ماہ بعد جاری کیا جائے گا۔ پہلا ڈی اے 1 جنوری 2023 سے نافذ ہوگا اور فوری طور پر ادا کیا جائے گا۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے اس سلسلے میں تفصیلات بتائی اور کہا کہ ملازمین کے 57 مطالبات میں سے کئی مطالبات کو منظوری دے دی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سرکاری ملازمین کے لیے ہیلتھ انشورنس ٹرسٹ قائم کیا جائے گا جس کے تحت ہر ملازم کو ماہانہ 500 روپے کا تعاون دینا ہوگا۔ ڈپٹی چیف منسٹر نے یہ بھی بتایا کہ تمام ملازمین کو ہیلتھ کارڈز جاری کیے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ خواتین کے سیلف ہیلپ گروپس کے لیے حادثاتی بیمہ اسکیم متعارف کروائی جائے گی اور اساتذہ کو سبکدوشی کے وقت فی کس 2 لاکھ روپے بھی ادا کیے جائیں گے۔ ڈپٹی چیف منسٹر نے بتایا کہ کابینی اجلاس میں 3 نئی میٹرو لائنز کو بھی گرین سگنل دے دیا گیا ہے۔ بھدردری کوتاگوڑم میں ارتھ سائنس یونیورسٹی قائم کرنے کا بھی فیصلہ لیا گیا ہے۔ شہر حیدرآباد کے RTC بھون میں جمعہ کو اس وقت کشیدگی دیکھی گئی جب RTC کے MD VC سجنار کو درخواست دینے آئے کارکنان کو پولیس نے روک دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ سینکڑوں کی تعداد میں کارکنان جمعہ کو RTC بھون پہنچے اور وہ MD VC سجنار سے ملاقات کرتے ہوئے ایک عرضی داخل کرنا چاہتے تھے، تاہم پولیس نے انہیں روک دیا۔ کارکنان کا کہنا ہے کہ انہیں غیر قانونی طور پر معطل کیا گیا ہے اور وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں فوراً بحال کیا جانا چاہیے۔ کارکنان بحال ہونے کی درخواستیں کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ معطلی کے بعد سے وہ اپنی افراد خاندان کے ساتھ سڑک پر آ گئے ہیں۔ RTC کے MD VC سجنار کو فوراً اس جانب توجہ دے کر انہیں بحال کرنا چاہیے۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے 3 ماہ کا راشن فراہم کرنے کے اعلان کے بعد لوگوں کو آدھی رات سے راشن حاصل کرنے کے لیے دکانات پر انتظار کرتے دیکھا جا رہا ہے۔ ریاست تلنگانہ کی حکومت نے جب سے 3 ماہ کا راشن فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے تب سے راشن کی دکانات پر لوگوں کی لمبی قطاریں ہیں۔ تکنیکی خرابی کی وجہ سے راشن کی فراہمی میں تاخیر ہو رہی ہے۔ بوڈوپل میں لوگوں کو آدھی رات سے راشن کی دکان پر انتظار کرتے دیکھا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 3 دنوں سے وہ راشن کی دکان کے چکر کاٹ رہے ہیں، اس کے باوجود ابھی تک انہیں راشن نہیں مل پایا ہے۔ ہائیڈرا کے عہدیداروں نے پیٹنی سینٹر میں نالے پر غیر قانونی طور پر بنائے گئے تجارتی ڈھانچے کو منہدم کر دیا۔ ایک بڑی کارروائی میں ہائیڈرا کے عہدیداروں نے جمعہ کی صبح پیٹنی سینٹر میں انہدامی کارروائی انجام دی۔ حکام نے غیر قانونی طور پر ایک نالے پر بنائے گئے تجارتی ڈھانچے کو ڈھا دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ نالا اصل میں 70 فٹ چوڑا تھا، لیکن قبضہ کیے جانے کے بعد اس کی چوڑائی صرف 15 تا 18 فٹ ہی رہ گئی تھی۔ PO کالونی، پیٹنی کمپاؤنڈ، پیٹنی کالونی، ویمن نگر، بھیل کالونی اور اندرما نگر کے رہائشیوں کی جانب سے ان کے علاقوں میں بار بار سیلاب آنے کی شکایتیں موصول ہونے کے بعد ہائیڈرا کے کمشنر AV رنگناتھ نے جمعرات کو ان علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے تفصیلات حاصل کی تھی اور جمعہ کو ہائیڈرا کے عہدیداروں نے نالے پر کیے گئے قبضے کو برخاست کر دیا۔ BJP MP ایٹیلا راجندر کلیشورم لفٹ اریگیشن پروجیکٹ کی تحقیقات کے سلسلے میں جسٹس گھوش کمیشن کے روبرو پیش ہوئے۔ تلنگانہ کے سابق وزیر اور BJP رکن پارلیمنٹ ایٹیلا راجندر جمعہ کو جسٹس PC گھوش کمیشن کے روبرو پیش ہوئے، جو کلیشورم لفٹ آبپاشی پروجیکٹ میں مبینہ بے ضابطگیوں کی جانچ کر رہا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ ایٹیلا راجندر
साल 2014 से 2019 के दरमियान BRS की हुकूमत में वज़ीर ख़जाना के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। वो जुमा को बिहार के भवन में कमीशन के सामने पेश हुए। कमीशन गोदावरी नदी पर 1 लाख करोड़ रुपये से ज़ायद की लागत से तामीर किए गए प्रोजेक्ट में मुबैना बेज़ाब्तगियों की जांच के एक हिस्से के तौर पर उनसे तहकीकात कर रहा है। समझा जा रहा है कि टेलर राजेंद्र से प्रोजेक्ट की तामीर और फंड्स की इजराई के लिए काबीना में लिए गए फैसलों के बारे में पूछ-गछ की जाएगी। आपको ये भी याद दिला दें कि टेलर राजेंद्र ने BRS की दूसरी मुद्दत में वज़ीर सेहत की हैसियत से खिदमत अंजाम दी, लेकिन साल 2021 में ज़मीन पर कब्जे के इल्ज़ामात के चलते साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR ने उन्हें काबीना से खारिज कर दिया था, जिसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। ये भी याद रहे कि खोज कमीशन ने KCR और साबिक़ वज़ीर T हरीश राव को भी तलब किया है। KCR को 20 मई को नोटिस जारी किया गया था और उन्हें 5 जून को पेश होने की हिदायत दी गई थी। ताहम BRS सरबराह ने कमीशन से दरख्वास्त की है कि वो अपनी पेशी 11 जून तक मुलतवी कर दें। हरीश राव, जो साल 2014 से 2019 के दरमियान वज़ीर आबपाशी थे, 9 जून को कमीशन के रूबरू पेश होने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज पनाकी चंद्र घोष की सरबराही में कमीशन कलेश्वरम प्रोजेक्ट के मेदीगड्डा, अनारम और संडेला बैरेजेस की मनसूबाबंदी, डिज़ाइन, तामीर, ऑपरेशन और देखभाल में मुबैना बेज़ाब्तगियों की जांच कर रहा है। निज़ामाबाद की नौ तश्कील शुदा पद्मशाली संगम कमेटी के अरकान ने BRS की MLC की कविता से मुलाकात की। निज़ामाबाद में पद्मशाली संगम एग्जीक्यूटिव कमेटी हाल ही में तश्कील दी गई है। पद्मशाली संगम के जिम्मेदारान पर मुश्तमिल एक वफ्द ने तेलंगाना जागृति की सदर वो MLC के कविता से खैर सगाली मुलाकात की। MLC ने नौमुंतखब अरकान को मुबारकबाद देकर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अदाकार अखिल अकीनेनी शादी के बंधन में बंध गए। उन्होंने अपनी दोस्त ज़ैनब से अन्नपूर्णा स्टूडियो में शादी कर ली। अखिल अकीनेनी ने अपनी दोस्त ज़ैनब से एक शानदार तकरीब के दौरान शादी की। दोनों 6 जून की अल्लाह सुबह शादी के बंधन में बंध गए। शादी की तकरीब में दोनों के अहल खाना, करीबी दोस्त, फिल्मी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की। सभी ने नौजवान जोड़े को मुबारकबाद देकर अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हीरो नागार्जुन की दावत पर फिल्मी शख्सियात की बड़ी तादाद इस मौके पर देखी गई। मेगा स्टार चिरंजीवी, रामचरण, श्रवणन, हिदायतकार SS राजामौली, उनके बेटे कार्तिकिया, हिदायतकार प्रशांत नील के अलावा हिंदुस्तानी क्रिकेटर तिलक वर्मा ने भी शादी की तकरीब में शिरकत की। अखिल का इस्तकबालिया इतवार 8 जून को बड़े पैमाने पर मुनक्किद किया जाएगा। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक तेज रफ्तार कार PVNR फ्लाईओवर पर डिवाइडर से टकरा गई। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ज़राए ने बताया कि राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में पिलर नंबर 340 के करीब PVNR एक्सप्रेस वे पर एक तेज़ रफ्तार कार बेकाबू हो गई और डिवाइडर से टकरा गई। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे की इत्तला मिलने पर हुकाम फ़ौरन मौके पर पहुंचे और सूरत हाल पर काबू पाने के इक़दाम करते हुए ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाया। मुज़दलिफ़ा में रात खुले आसमान तले गुजारने के बाद हुज्जाज इकराम बड़े शैतान को कंकरियां मारने मीना पहुंच गए और रमी का आगाज हो गया। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफात गुज़िश्ता रोज़ अदा कर दिया गया। हुज्जाज इकराम ने मैदान अरफात में रुकन आज़म की अदायगी के बाद मुज़दलिफ़ा का रुख किया, जहां उन्होंने खुले आसमान तले रात गुजारी। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत और मनाजात में मसरूफ़ रहे। आज हुज्जाज इकराम बड़े शैतान को कंकरियां मारने के लिए मीना पहुंच गए हैं और रमी का आगाज हो गया है। आपको बता दें कि बड़े शैतान को कंकरियां मारने के बाद हुज्जाज जानवरों की कुर्बानी कर सर मुंडवाएंगे और एहराम खोल देंगे। हुज्जाज तवाफ़ ज़ियारत और सही करने के बाद मीना लौट आएंगे, जहां वो मज़ीद 2 दिन क़याम के दौरान रमी करेंगे और 12 ज़िलहज को मगरिब से क़ब्ल वादी मीना से निकल जाएंगे और यूँ उनके हज के फरीज़े का अमल मुकम्मल हो जाएगा। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल अज़हा
मनाई गई मस्जिद हरम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए। मस्जिद हरम में इमाम मस्जिद हरम शेख माहिर अल मैखली ने नमाज ईद की इमामत की और खुतबा दिया। मस्जिद अक्सा में भी ईद की नमाज का इज्तिमा हुआ। लेबनान और मिस्र में भी ईद के बड़े इज्तिमात हुए। नमाज के बाद कुर्बानी की गई। सऊदी अरब के फरमान रवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने उम्मत मुस्लिमा को ईद की मुबारकबाद पेश की है। हैदराबाद डिजास्टर रेस्पॉन्स एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने बेगमपेट में हशमतपेट और पिकेट नाले का दौरा किया। हाइड्रा के प्रजावानी के दौरान शिकायतें मौसूल हुई थी कि नाले पर कब्जे किए जा रहे हैं। अवामी शिकायत मौसूल होने पर हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने बेगमपेट में हशमतपेट और पिकेट नाले का दौरा किया। इस मौके पर मुकामी लोगों ने कमिश्नर को बताया कि किस तरह से नाले पर कब्जा किया गया है और मौसम बरसात के दौरान नालों का पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल होता है। सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डी मधुकर नायक भी हाइड्रा कमिश्नर के हमरा मौजूद थे। उन्होंने कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से नालों के बहाव को रोकने के लिए किए जाने वाले इक़दाम से वाकिफ करवाया। बादशाह हाइड्रा कमिश्नर ने चिकोटी गार्डन का भी दौरा किया। मुकामी लोगों से बातचीत की। इस दौरान उन्हें पता चला कि नाले पर कब्जे करने की वजह से पूरा नाला सुकड़ गया है, जिसके नतीजे में मानसून के दौरान कॉलोनियों में पानी दाखिल हो जाता है और सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा होती है। हाइड्रा के कमिश्नर ने ओहदेदारों को फौरन नाले पर किए गए कब्जेजात को बर्खास्त करने की हिदायत जारी की। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम और सैफाबाद पुलिस ने ई सिगरेट की गैर कानूनी फरोख्त करने वाले शख्सों की गिरफ्तार करते हुए 21 लाख रुपये मालियती ई सिगरेट्स जब्त कर लिए। ज़राए ने बताया कि कमिश्नर की टास्क फोर्स सेंट्रल जोन टीम के एहलकारों ने सैफाबाद पुलिस के साथ मिलकर एक मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई की और ममनुआ ई सिगरेट्स की गैर कानूनी फरोख्त में मुलविस एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अहदेदारों ने आदर्श नगर में वाक़ एक फ्लैट पर छापा मारा और इस दौरान आकाश सिंधे को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 670 ई सिगरेट्स बरामद किए, जो कि मुख्तलिफ ब्रांड्स जैसे कि एल्फार, एल्क्स, राया, D1, नेस्टी और शीशा के थे। आपको बता दें कि ई सिगरेट्स में निकोटीन और नुकसानदा केमिकल ज़्यादा होते हैं, जो उन्हें इंतहाई नशावर और सेहत के लिए नुकसानदा बनाते हैं। इस तरह के मसनूआत की आसानी से दस्तयाबी नौजवान आबादी के लिए ख़तरे का बाज़ बन रही है और उनकी सेहत के लिए ये इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकती है। मुलजिम को ज़ब्तशुदा मवाद समेत मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए सैफाबाद SHO के हवाले कर दिया गया है। मेलार्देवपल्ली पुलिस हदूद में कत्ल की वारदात पेश आने की खबरें गलत साबित हुई। इब्राहिम उल हक ने एक वीडियो जारी करते हुए अपने बाहयात होने की तस्दीक की है। GHMC इलेक्शन इंचार्ज इब्राहिम उल हक का कत्ल होने की खबरें सोशल मीडिया के जरिए ये कहकर फैलाई गई कि मेलार्देवपल्ली पुलिस हदूद में नामालूम अफराद ने उन्हें कत्ल कर दिया है। इब्राहिम उल हक ने एक वीडियो जारी करते हुए उनके बाहयात होने की तस्दीक की और कहा कि किसी ने उनके कत्ल की गलत खबरें फैलाई हैं। उनके अफराद ख़ानदान, दोस्त और अहबाब को परेशान किया है। उन्होंने बताया कि उनके कत्ल से मुताल्लिक़ झूठी खबरें फैलाने वाले शख्स के खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। इब्राहिम उल हक ने पुलिस से भी मुतालबा किया है कि वो इस तरह की गलत खबरें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। गौरक्षा के नाम पर हथियार लेकर घूमते हुए हैदराबाद शहर के पुरअमन माहौल को खराब करने की कोशिश। सूराराम पुलिस स्टेशन हदूद में मुकामी अफराद ने 2 लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया। ईद उल अजहा के मौके पर अक्सर ये देखा जाता है कि गौरक्षा के नाम पर समाज दुश्मन अनासिर मुतहरिक हो जाते हैं और फिर बेकसूर अफराद को अपना निशाना बनाते हैं। हालांकि पुलिस की जानिब से बारहा उन्हें मुतनब्बा किया गया है कि वो गौ रक्षा के नाम पर कानून अपने हाथ में ना लें और अगर कोई गैर कानूनी काम होते देखें तो फौरन पुलिस को इतला दें। लेकिन पुलिस के इस इंतबाह के बावजूद भी गौ रक्षा के नाम पर शहर हैदराबाद के पुरअमन माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। सूराराम पुलिस स्टेशन हदूद में मुकामी अफराद ने 2 लोगों को पकड़ लिया। वो खुद को
गौ रक्षक बता रहे थे और जब उनकी गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें से हथियार बरामद हुए। लोगों ने फौरन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तमाम तर तफसीलात हासिल की और दोनों को अपनी तहवील में ले लिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हरी झंडी दिखाए जाने के फौरन बाद कटरा और श्रीनगर को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ने चिनाब पुल को उबूर किया। वज़ीर आज़म मोदी ने जुमा को रामबन जिले में दरिया चिनाब पर चिनाब पुल का इफ्तिताह किया। ये मेहराब वाला पुल दुनिया का बुलंद तरीन पुल है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा, मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के अलावा रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव व दीगर मौजूद थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चिनाब पुल का इफ्तिताह तिरंगा लहरा कर किया। दरियासना उन्होंने कटरा रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हरी झंडी दिखाए जाने के फौरन बाद कटरा और श्रीनगर को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ने चिनाब पुल को उबूर किया। AIMIM की महाराष्ट्र इकाई ने इशारा दिया है कि वो आइंदा BMC और मुकामी इंतखाबात में उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं। महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे के फर्जंद व शिवसेना UBT के MLA आदित्य ठाकरे ने हाल ही में तमाम गैर महायुति पार्टियों से अपील की है कि वो महाराष्ट्र की बेहतरी के लिए मुत्तहद हो जाएं। AIMIM ने आदित्य के इत्तेहाद की इस पहल पर मुस्बित इशारे दिए हैं और ये इतलात मिल रही हैं कि महाराष्ट्र की AIMIM यूनिट उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिलाने को तैयार है। MLA मुफ्ती इस्माइल ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि ठाकरे और ओवैसी एक साथ आएं। आदित्य की इस तजवीज़ पर गौर किया जाएगा। मजलिस के MLA ने कहा कि मजहब मसला नहीं है, तरक्की के मामले पर मजलिस बात कर सकती है और अगर कोई तरक्की के लिए मजलिस को बुलाता है तो मजलिस खुद आगे बढ़ेगी। उनका कहना था कि इस सिलसिले में हतमी फैसला AIMIM के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ही करेंगे। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा MLA जाफर हुसैन मिराज ने ईद उल अजहा के दौरान कुर्बानी के जानवरों के फजले को ठिकाने लगाने के लिए तमाम डिवीजन्स में ब्लैक कवर्स तकसीम किए। AIMIM की नुमाइंदगी पर GHMC की जानिब से ईद उल अजहा के दौरान कुर्बानी के जानवरों के फजले को ठिकाने लगाने के लिए ब्लैक कवर्स फराहम किए जा रहे हैं। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा MLA जाफर हुसैन मिराज ने मदीना मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने के बाद पार्टी के तमाम कॉरपोरेटर्स के हमरा तमाम डिवीजन्स में ब्लैक कवर्स तकसीम किए। कवर्स की तकसीम का बुनियादी मकसद ईद के मौके पर सफाई की अहमियत को उजागर करना है और उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो कुर्बानी के जानवरों के फजले को सही तरीके से ठिकाने लगाएं और तकसीम किए गए ब्लैक कवर्स का इस्तेमाल करें। MLA जाफर हुसैन मिराज ने ईद उल अजहा के मौके पर अपने इलाकों में सफाई और हिफ्ज़ान सेहत को बरकरार रखने के लिए ताउन करने की भी ख्वाहिश की है। Germantown Super Speciality Hospital National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर